میں ایک ہی روز میں کورونا کے ریکارڈ 3,938 کیسز. وائرس نے مزید 78 زندگیاں نگل لیں. اب تک 1,621 اموات. 76,398 شہری متاثر. سندھ میں 29,647, پنجاب میں 27,850 مریض, خیبر پختونخوا میں 10,485, بلوچستان میں 4,514 کیسز. ملک بھر میں شادی ہالز، سکولز، کالجز اور ریسٹورانٹس نہ کھولنے کا فیصلہ. دکانیں کھولنے کے لیے پرانے اوقات کار پر عمل ہوگا. ہفتے اور اتوار کے روز لاک ڈاؤن ہوگا. 40 ٹرینیں چلیں گی. قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے. سندھ حکومت کا نئے SOPs کے ساتھ لاک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ. تعلیمی ادارے، شادی ہال، سنیما گھر اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی برقرار. ریسٹورنٹ سے ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے کی اجازت ہوگی. محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفیکیشن جاری. بلوچستان میں 6 دن کاروباری مراکز شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے. جمعے کو تمام دکانیں بند رہیں گی. دودھ، دہی، تنور، میڈیکل سٹور ساتوں دن 24 گھنٹے اوپن. ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار. سمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 دن کی توسیع. ملک میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. چند شعبوں کے علاوہ تمام کھول دیے. ٹورازم کھولنے کے لیے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا SOPs بنائیں. 1 سال تک کورونا کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. عوام کو احتیاط کرنا ہوگی. وزیر اعظم عمران خان. ملک میں کورونا کی وبا بے قابو. اسلام آباد کے عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازم قرار. خلاف ورزی پر دفعہ 188 کے تحت کارروائی ہوگی. بھاری جرمانے کے ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی. جرمانہ کر رہی ہے، ماسک لازمی پہنیں گے. دیر آئے درست آئے ایک اچھا فیصلہ ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں اس پہ. یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. صحت کے لیے ضروری ہے اور ماسک لگانا چاہیے. حکومت نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کا کیس. لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی عبوری درخواست سے ضمانت پر سماعت آج ہوگی. امریکہ سے پاکستانیوں کی وطن واپسی. PIA کی 5ویں خصوصی پرواز نیو جرسی سے اسلام آباد کے لیے روانہ. قونصل جنرل عائشہ علی نے ایئرپورٹ پر مسافروں کو رخصت کیا. دیرپا امن دیرینہ تنازعات کے حل سے ہی ممکن. علاقائی امور طے کرنے کے لیے عالمی حمایت اور عزم بھی ناگزیر. قوم کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاستی اداروں سے تعاون جاری رکھیں گے. آرمی چیف کی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے دورے پر گفتگو. گجرانوالہ میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 150 روپے اضافہ. سرکاری طور پر آٹے کی قیمت 825 روپے مقرر. 1000 روپے تک فروخت. شہریوں کی پریشانی میں اضافہ. دکان پہ جاتے ہیں کوئی 900 روپیہ ریٹ ہے دے رہا ہے, کوئی 950 دے رہا ہے, کوئی 1000 دے رہا ہے. اگر دکاندار سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں فلور مل والے مہنگا دیتے ہیں, ہم کیا کریں. عام صارف کے لیے روٹی کھانا مشکل کر دیا انہوں نے. کہ آپ بتائیں 1000 روپے کا تھیلا کون کہاں سے خریدے. پہلی لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کے مخدوش حالات ہیں, دیہڑی دار کو کام نہیں مل رہا اور اوپر سے یہ مہنگائی. سندھ میں گرمی جوبن پر. دادو اور نواب شاہ میں پارہ 46 تک پہنچنے کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد میں بادل برسنے کا امکان. جموں، سری نگر اور بارامولہ میں بھی بادل برسیں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندر. میں ہوں آمنہ کھٹانہ. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا بریک کے بعد.
भर में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। कोरोना पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना के 78 अफराद जो कि जान की बाजी हार गए हैं। एक मूजी वबा से जाँ बहक अफराद की अब कुल तादाद 1621 हो गई है, जबकि मुल्क भर में रिकॉर्ड 3938 केस सामने आ गए हैं। पाकिस्तान में मुतासरा मरीजों की तादाद 76,398 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान अब तक रिकॉर्ड 3,938 केस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में 78 अफराद की जान जाने के बाद पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद 1621 हो गई है। भर में कोरोना से अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा, मुतासरा मरीजों की तादाद भी हदों को छू गई। मूजी वबा ने मजीद 78 अफराद की जान ले ली। जाँ बहक अफराद की तादाद 1621 हो गई है। एक ही रोज में कोरोना के सबसे ज्यादा केस भी सामने आ गए। मजीद 3,938 अफराद कोरोना के शिकार हुए। पंजाब में 29,647, सिंध 27,850, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485 लोग मुतासिर हैं। बलूचिस्तान में 4,514, इस्लामाबाद 2,893, गिलगित बल्तिस्तान 738, आजाद कश्मीर में 271 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। 27,110 अफराद बीमारी से सेहतयाब भी हो गए। सिंध में कारोबारी औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक हो गए हैं। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है और पीर से जुमे तक कारोबार होगा। ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसला आज हो सकेगा। लॉकडाउन में नरमी की SOP से मशरूत इजाजत तो दी जा रही है, मगर इस पर कितना अमल हो रहा है जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। हामिद, कहेगा इंतजामिया कितनी एक्टिव नजर आ रही है SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए? देखिए, महकमा सेहत की जानिब से नया हिदायतनामा सामने है, जिसमें ये जो कारोबार के औकात कार है उनको बढ़ा दिया गया है और कारोबार भी 5 दिन तक करने की अब जो है वो इजाज़त होगी। लेकिन सबसे अहम बात जो पहले भी हम महसूस कर रहे थे, SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन SOPs पर कहीं अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। इंतज़ामिया भी SOPs पर अमल कराने में जो है नाकाम दिखाई देती है। जो बिज़नेस करने वाले हजरात हैं, जो कारोबारी हजरात, उनसे कहा गया था कि ऐसे अफराद जो SOPs पर अमल ना करें उनको अपनी दुकानों में ना आने दिया जाए। उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो उनसे कहें कि वो मास्क पहन कर आएँ, जबकि जो कारोबारी अमला है उनसे भी ये कोशिश की जाए कि उनका जो अमला है, जो उनके पास काम करने वाले लोग, उनको भी मास्क पहनाए जाए और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाए और सैनिटाइज़र दुकानों पर रखे जाएँ और डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे है वो किया जाए। लेकिन देखा यही गया है कि इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और अब भी आज भी यहाँ पर भी जो भी कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं, यहाँ पर ना ही कारोबारी हजरात जो हैं वो मास्क पहन रहे हैं, ना ही जो ख़रीदार हैं, जो ख़रीदारी के लिए अफराद जो आ रहे हैं वो मास्क पहन रहे हैं, ना ही सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही जो दुकानें हैं, जो कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उस दौरान जो है उनको जो है सैनिटाइज़र दुकानों पर रखा गया है। ऐसी कोई चीज़ जो है दिखाई नहीं दे रही और जो SOPs है उनकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। हामिदुर रहमान अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसीह कर दी गई है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार करने की हिदायत जारी कर दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा मीर। जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी करते हुए महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 जून तक मुकम्मल तौर पर यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान तमाम छोटी बड़ी मार्केटों समेत तमाम शॉपिंग मॉल्स यहाँ मुकम्मल तौर पर खुले रहेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक तमाम कारोबारी मराकज़ यहाँ पर खुले होंगे। हफ्ते में 6 दिन तमाम कारोबारी मराकज़ खोलने के साथ ही जुम्मे वाले दिन तमाम यहाँ पर कारोबारी मराकज़ वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे, जबकि मेडिकल स्टोर, करंटीना और जो मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया है उन समेत तमाम दुकानें यहाँ पर 24 घंटे खुली होंगी। लेकिन जो कारोबारी मराकज़ है वो सुबह 9 बजे से 7 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद होंगी। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात की भी ताकीद की गई है कि लोग जो है ना वो SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें, लोग एहतियाती तदाबीर करें। यहाँ पर ये तीसरी मरतबा लॉकडाउन में तौसीह कर दी गई है और इस मरतबा जो 15 दिन का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया। साथ ही यहाँ पर 15 जुलाई तक तमाम तालीमी जो मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया है। खिलाफ वर्जी की सूरत में 3,000 रुपए जुर्माने के साथ
जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। मास्क ना पहने पर खरीदारी की इजाजत भी नहीं होगी। इस्मा शौकत की रिपोर्ट। कोरोना की वबा बेकाबू, वफाकी दारुल हुकूमत के अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार। खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत कार्रवाई होगी। भारी जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट्स, मसाजिद, दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और दीगर अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजिम होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में 3000 रुपए जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। शहरी कहते हैं सूरत हाल गंभीर हो चुकी है।